لیے آج میں کہنا چاہتی ہوں، جو بات میں نے کہی، میں نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی فیک ویڈیو ہے، نہیں، ویڈیو صحیح ہے، مگر جو لفظ میں نے کہ بہانہ بنتا ہے کہیں مجھ سے سلپ کر گئے، کیونکہ میں بہت لوگوں کے ساتھ بول رہی تھی اور اس کا غلط مطلب نکالا گیا. تو اگر میری وجہ سے، کیونکہ لوگوں کا رشتہ، میں نے کہا مجھے باپ دادا سے کرسی نہیں ملی، گپکار روڈ میں زمین جائیداد نہیں ملی، گاڑیاں نہیں ملی، ٹنگ مرگ میں پراپرٹی نہیں ملی، لندن میں پراپرٹی نہیں ملی، مجھے لوگوں کے، یہاں کے لوگوں نے پیار دیا، انہوں نے عزت دی، اور شاید ان کو مجھ پہ بھروسہ بھی زیادہ ہے کہ جیسے نیشنل کانفرنس ایسے اس وقت اس کو پیش کر رہی ہے، جیسے عمر صاحب نے کل کا، جیسے افضل گرو کی پھانسی پہ میں نے سائن کیا تھا، جیسے مقبول بٹ کی پھانسی پہ میں نے سائن کیا تھا، جیسے کشمیریوں کو گولی مارو میں نے کہا تھا. مگر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اگر میرے لوگوں کو میری اس بات سے جو بات ادھوری رہ گئی، ان کو کہیں تکلیف پہنچی، دل آزاری ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بات سے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. میرا پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہے، آج گئے 7 وری پی ڈی پی ایس ونمتس، آج 27 سال ہو گئے ہیں مفتی صاحب کی جو زندگی کی جدوجہد تھی کہ میں جموں کشمیر میں ایک متبادل، بہتر متبادل دینا چاہتا ہوں. آج اس کے 27 سال پورے ہو گئے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم جو مفتی صاحب نے جو ایک ویژن دیا تھا، ایک نظریہ دیا تھا، پی ڈی پی اس پہ قائم اور دائم ہے. ہم آج ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ اس فاؤنڈیشن ڈے کو منانا چاہتے تھے، پر چونکہ آپ کو پتہ ہے پورے ریاست میں سیلابی صورتحال ہو گئی، بارشیں بہت ہو گئیں، خاص کر راجوری پونچھ میں جان و مال کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. یہاں بھی بہت ہمارے لوگ پریشان رہے، یاترا کی وجہ سے بھی لوگوں کو یہاں آنے میں دقتیں تھیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں، آگے چل کے اس کو ہم منائیں گے. اور آج میں اس موقع پہ اپنے جو ورکر ہیں اور اپنے کولیگس ہیں سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج ہمارا جو پی ڈی پی کے 27 سال پورے کیے، اس کے باوجود کہ ہمارے اوپر بہت وار کیے گئے، ہمارے اوپر بہت حملے کیے گئے، مگر میرا ورکر، میرے ساتھی میرے ساتھ کھڑے رہے، میرے اس جدوجہد میں شامل رہے. تو آج ہم نے کچھ ایک ریزولوشن جس کی کاپی آپ کو ملے گی، میں مختصراً اس کے کچھ پوائنٹس پڑھوں گی. مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے کافی سارے سوال کرنا چاہتے ہیں. ایک تو سب سے پہلا جو ہمارا رہا ہے، جس کے لیے پی ڈی پی وجود میں آئی، وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے پرامن حل کے لیے، اور اس کے ساتھ آج بشمول 370 35A اور ہماری جو شناخت ہے اور اسٹیٹ، اس کے لیے پی ڈی پی جو ہے وعدہ بند ہے. ہم جدوجہد کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کو حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ پیس ود ڈگنیٹی اگر جو مفتی صاحب کا نعرہ تھا، اگر وہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے بات چیت، ریکنسیلیشن، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بہت ضروری ہے. اس پہ ہم کام کریں گے. تیسری بات کہ مفتی محمد سعید صاحب کا جو ویژن ہے وہ تب تک آگے نہیں چل سکتا جب تک جموں کشمیر، وادی کشمیر اور جموں ایک ساتھ نہ چلے، جب تک ہم ایک دوسرے کا دکھ درد نہ سمجھے، جب تک ہم ایک دوسرے کی ترقی کے لیے اکٹھے کام نہ کریں. تو ان دونوں ریجنز کو پہلے بھی مفتی صاحب نے بہت کام کیا، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم قدم جیسے کرگل اور لداخ کے لے کے لوگ اکٹھے چلیں، ہم بھی کوشش کریں گے، ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں. اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کشمیر کو، جموں کشمیر کو ایک کوزے میں بند کیا گیا ہے. جموں کشمیر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ایک اہم رابطہ بن سکتا ہے. جو پرانے زمانے میں ہمارے راستے تھے، چاہے سلک روٹ تھا یا دوسرے راستے تھے، جہاں سے ہمارے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے اپنی ثقافت اور ہمارے جو دین ہے اس کی یہاں تعلیم دی. ہم چاہتے ہیں یہ راستے دوبارہ، چاہے لائن آف کنٹرول پہ ہو یا ایل او سی کے ہو، یہ آر پار جو راستے ہیں وہ آواجاوی اور تجارت کے لیے کھولنے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتی صاحب نے اپنے کم قلیل وقت میں، جب ہم نے 2004 میں اڑی چلو کا نعرہ دے کے 14 جانوں کی شہادت دی اور 2005 میں راستہ کھلا، جو بدقسمتی سے مظفر آباد، راولا کوٹ بند کیا گیا ہے، ہم اس کو
ट्रेड के लिए फिर से खोलने के लिए मरकजी सरकार से इस्तदा करते हैं। और साथ ही जो शारदा पीठ है, जैसे हमारे सरदार भाइयों का पाकिस्तान में जो गुरु नानक देव जी की पैदाइशी जगह है, जो वहाँ का गुरुद्वारा है, वहाँ जाने की उनको इजाज़त दी जाती है। इसी तरह हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, उनके लिए शारदा पीठ खोला जाना चाहिए। और तमाम सियासी कैदी और जो ज़ैर हिरासत अफराद हैं, उनके रिहाई का मुतालबा बहुत साल से करते रहे हैं। जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो खामा में PSA UAPA के अंदर उनको बंद रखा और उनकी कार्रवाई भी नहीं होती, 5-5, 6-6 साल से कुछ नहीं होता है। और जिनकी कार्रवाई होके जिनको बेल मिलती भी है, जमानत मिलती भी है, जैसे शबीर शाह साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, उसके बावजूद बंद है। इनमें से कई लोग जैसे जमात इस्लामी के लीडर हैं, जैसे मियाँ क़यूम साहब हैं, बहुत बीमार है और उनकी बीमारी का हम सुनते हैं। मगर जो आम खाम घरों से गरीब बच्चे इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, अंडर ट्रायल है, उनकी कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो रही, वो बीमार हैं, उनकी बात कोई नहीं करते हैं। हम उस पर भी मरकजी सरकार को कहना चाहते हैं, उस पर नजरसानी करनी चाहिए और जब तक इनका केस प्रूव हो जाए, इनको बेल पे रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन इलाकों में मिलिटेंसी कम हो गई है, जैसे कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ना के बराबर है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस्तदा करते हैं कि वहाँ से आर्मी को निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। ये कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम बहुत पहले से करते आए हैं और आज इसको हम रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो कुदरती वसाइल है, आपने देखा हमारी माइनिंग के लिए बाहर से ठेकेदार आते हैं, हमारे नाले, हमारे जंगल किस तरह बेदर्दी से काटे जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा वसाइल हमारे पानी के ज़ख़ीरे, जिसको इस्तेमाल करके बिजली पैदा होती है और सारी बिजली पूरे मुल्क में जाती है, पर हमें इतनी महंगी बिजली मिलती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम मरकजी सरकार से ये भी डिमांड रखते हैं कि या तो हमें उसके बदले मुआवजा मिले या कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट हमें ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि उमर साहब ने वादा तो किया था 200 यूनिट बिजली मैं फ्री दूंगा, वो तो नहीं दी उन्होंने, मगर कम से कम अगर हमें मुआवजा या पावर प्रोजेक्ट वापस मिले तो हमारी कई जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकती हैं। और इसके साथ पीर पंचायत और चुनाव वैली में काफ़ी देर से डिमांड रही है कि हमारा अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बनना चाहिए। हम इस मांग को दोबारा दोहराते हैं ताकि वहाँ भी जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से हो जाए और कश्मीरी पंडितों की वापसी हम चाहते हैं बाइज्जत तरीके से, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। और जो ईरान और दूसरे इस वक्त मुस्लिम ममालिक में जो जंगी सूरत हाल है, हम इस वक्त उनके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये जो खून खराबा हो रहा है इसको बंद किया जाए, तमाम लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारे। और सबसे आखिर में 5 अगस्त जिस दिन हमसे सब कुछ छीना गया है, जिसके बारे यहाँ बात करना खत्म हो गया है। आप लोग तो शायद भूल जाएंगे, जब आप लोगों को भी जाती हुई है तो हमने आवाज़ उठाई, मगर 5 अगस्त के दिन हमारे तमाम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में 370 की बहाली के लिए, मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए, 35A की बहाली के लिए एक पुरअमन धरना देंगे। और आखिर में मुझे मालूम है ये बातें आपको लगता होगा ये शायद ज़बानी खर्चा नहीं, आप जानते हैं जो इसको जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ऐसे में ये बातें करना कितना मुश्किल है। इसके लिए मैंने पहले ही और मेरी पार्टी ने पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आपको पता है कि हमारी पार्टी को किस तरह तार किया गया, हमारे वर्कर्स को क्या किया गया। हमारा यहाँ बैठा है वहीद परा 2 साल इसको बंद किया, यासिर ऋषि के साथ क्या किया गया, इसको कितना ब्लैकमेल किया गया, हमारे लीडरों के साथ क्या किया, मेरे घर वालों के साथ। इल्तिजा जिसने 2019 में बात की, आवाज़ उठाई, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थी, उसका पासपोर्ट बंद, मेरी माँ को ईडी ऑफिस, मेरे भाई को ईडी, मेरी बहन जो अमेरिका में रहती है उसके अकाउंट सीज किए गए, मेरा बहनों जो चेन्नई में है उसके अकाउंट बंद, मेरे साथ जाती, मुझे ईडी ऑफिस बुलाना, मुझे घर से निकालना, सब कुछ किया, मगर मैं सिर्फ
जम्मू कश्मीर के खातिर जिनके साथ मेरा रिश्ता है, क्योंकि मुझे बाप से या दादा से कोई ताज नहीं मिला। मुझे जो कुछ दिया है अल्लाह के बाद यहाँ के लोगों ने दिया है, और मैं यहाँ लोगों के साथ खड़ी रही। और इसलिए जब हम आज ये बातें करते हैं, जिस बात के लिए न सिर्फ दिल्ली वाले हमारे मुखालिफ हैं, बल्कि जो यहाँ की जमातें हैं वो भी खौफजदा हैं, और इसलिए कोशिश की जाती है कि महबूबा मुफ्ती ने दौलत नहीं कमाई, इसने मकान नहीं बनाए, गाड़ियाँ नहीं बनाई, इसने अय्याशी नहीं की, बल्कि इसने लोगों के साथ एक राब्ता, एक क्रेडिबिलिटी बनाई। उस क्रेडिबिलिटी को जख्म पहुँचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और शायद आप लोग ये जानना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त जंतर मंतर को लेके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के यहाँ के लोगों को दिए। मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। मैंने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ जंगल जंगल, गांव गांव, जब फारूक साहब 96 में ऑटोनॉमी के नारे पे उनको 60 MLA मिले, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ उन्होंने इखवान और टास्क फोर्स को कहा जाओ, गो एंड गेट देम। और उस वक्त जो आज ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया जाता था, उस वक्त ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, शक के नाम पे लोगों की लाशें 2-2, 3-3 दिन के बाद मिलती थी, और कभी नहीं भी मिलती थी। जैसे शेखपुरा जखन में, रफियाबाद में कीड़े पड़े थे उस लाश में, जब मैंने उनको वो लाश ला दी। मगर उस वक्त जब मैं गांव गांव, जंगल जंगल जाती थी, पैदल जाती थी, कभी कभी फारूक साहब मेरी गाड़ी विड्रॉ करके, मेरा PSO विड्रॉ करके मैं जंगलों में जाती थी। और मुझे नहीं मालूम, वो कोयूम साहब मेरे साथ होते थे, कश्मीर टाइम्स के फोटोग्राफर, जंगल जंगल में जाती थी। उस वक्त उमर साहब BJP में फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो उन ज्यादतियों का, उस पोटा का, उस टास्क फोर्स की ज्यादतियों का, इखवान की ज्यादतियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस से जब कभी ज्यादती होती थी उसका दिफा करते थे पूरी दुनिया में जाके कि भाई कश्मीर में टेररिज्म है, वहाँ क्या हो सकता है, मेरा बाप मजबूर है ये सब कुछ करने के लिए। मगर उस वक्त यही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, चुनाव वैली में घर घर जाके लोगों के आंसू पोंछती थी। इसलिए आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने बात कही, पहले तो मुझे लगता है उमर साहब जंतर मंतर पहुँच गए स्टेटहुड को लेके। क्या फर्क पड़ता अगर वो अपने नौजवान, जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, उनके लिए 2 मिनट वहाँ खड़े हो जाते। क्योंकि मैं खुद नहीं गई वहाँ, मुझे कश्मीर के बच्चों ने फ़ोन करके बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पता है, जब भी कुछ होता है, जब ये बच्चे हमारे बाहर होते हैं, इनको वहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल में तंग किया जाता है। उनको लगा शायद महबूबा मुफ्ती आएगी तो शायद हमारी मदद होगी। मैं गई, मैंने वहाँ बात की, मैंने कहा आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर बना है। और जब मैं वहाँ से तकरीर करके निकली, कई सारे लोग दाएं बाएं मुझसे पूछने लगे। मैंने बहुतों को अपनी बाइट दी, मगर एक आ गया इसकी बाइट में, जहाँ मैंने कहा कि मिलिटेंसी है और बहाना बनता है, बहुत बहाना जल्दबाजी में मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि मैंने कहा, मैंने सोचा मैंने कह दिया, और उसको इन्होंने इतना उछाला। मगर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में थी 96-97 में, जब मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती थी, तो फारूक साहब सीताराम केसरी के पास जाते थे, बोलते थे कश्मीर टाइम्स दिखा के, ये देखो तुम्हारी वहाँ जो CLP लीडर है ये कैसे एंटी नेशनल बातें करती है। वही काम आज उमर साहब करते हैं, वही काम आज दूसरी जमातें जो यहाँ है, B टीम, C टीम, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ सब कुछ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। मगर महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी बयानबाजी करते हैं, और हम मजबूर होते हैं बयान देने के लिए। तो इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ, जो बात मैंने कही, मैं नहीं कहूँगी कि वो कोई फेक वीडियो है, नहीं, वीडियो सही है, मगर जो लफ्ज मैंने कि बहाना बनता है, कहीं मुझसे स्लिप कर गया, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ बोल रही थी और उसका गलत मतलब निकाला गया। तो अगर मेरी वजह से, क्योंकि लोगों का रिश्ता, मैंने कहा मुझे बाप दादा से कुर्सी नहीं मिली, गुफकार रोड में जमीन जायदाद नहीं मिली, गाड़ियाँ नहीं मिली, टंगमर्ग में प्रॉपर्टी नहीं मिली, लंदन में प्रॉपर्टी नहीं मिली, मुझे लोगों के, यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने इज्जत दी, और शायद उनको मुझ पर भरोसा भी ज्यादा है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे इस वक्त इसको पेश कर रही है, जैसे उमर साहब ने कल का, जैसे अफजल गुरु की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे मकबूल भट्ट की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे कश्मीरियों को गोली मारो मैंने कहा था। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर मेरे लोगों को मेरी इस बात से जो बात अधूरी रह गई,
ان کو کہیں تکلیف پہنچی, دل آزاری ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بات سے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. تو اس کے علاوہ آج میں ہمارا سیلیبریشن ڈے ہے PDP کا, تو میں چاہوں گی آپ سب لوگ چائے جوس جو بھی ہم سے بن پڑے گا, آج آپ ہمارے ساتھ ہمارے دن کو منائیے. بہت بہت شکریہ.